Good morning student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class we will discuss about the non-stoichiometric defect. In point defect in yesterday class we discussed about the stoichiometric defect and point defect in stoichiometric defect and the type of stoichiometric defect, okay, and impurity defect. Now today we will see here non-stoichiometric defect. As the name suggests that non-stoichiometric, it means the stoichiometry of crystal is disturbed in such type of defect. During crystallization, stoichiometry of crystal is disturbed. Okay. There are two types. They are of two types. One is metal excess defect, and another is metal deficiency defect. Okay, metal deficiency defect. Now we will see here the metal excess defect. Non-stoichiometric defects are of two types. One is the metal excess defect. In such case, metal ion become excess either by losing an ion or either by gaining cation. In metal deficiency defect, metal ion is always missing. Okay, now we will see here the metal excess defect. Metal excess defect. This type of defect is due to the excess of cation. This type of defect is due to the excess of cation. Okay, this is due to excess of cation. First, it is also of two types. It is of two types. First is metal excess defect due to anionic vacancy. Okay.
In such type of defect during crystallization, anion from the crystal lattice escape and come on the surface of the crystal, due to which there are large space left behind and they lose electron in the crystal. They lose electron in the crystal. Okay. You can write here. This defect is this defect is in form of negative ion. Okay, due to negative ion. It means that is during crystallization, anion from the crystal lattice escape and come on the metal surface, and lose their electron in vacant place. It means to say that, for example, you can take example of sodium chloride. When we crystallize sodium chloride in sodium vapor, then what happens? Chloride ion, after losing its electron, come on the surface of the crystal, and the space left behind the inside the crystal is so much larger than the size of electron, in which electron can transit or can excite from higher energy level to lower energy level and give the color to the crystal. Okay, see in the form of example, then you will understand. Okay, vacant place in crystal. Vacant place in crystal is known as F center. Vacant या vacancy due to anion in crystal is known as F center. F center, F stand for Forbengenter. It is a German word.
means color center. Okay, known as color center. Now we will take here the example of sodium chloride. Okay, sodium chloride. Or imagine that the crystal of sodium chloride, cation, anion, cation, cation, anion, cation, anion. Okay, cation, anion, cation, anion. Okay, now here will be cation, anion, cation, anion. The symbol of cation. Here again will be cation, anion, cation, anion. Okay, here is chloride ion, sodium ion, chloride ion, sodium ion, then chloride ion, sodium ion, chloride ion, sodium ion, chloride ion, sodium ion, chloride ion, sodium ion, chloride ion, and sodium. Similarly, chloride ion, sodium ion. Now this is the crystal of sodium chloride, and here this is surrounding. This is the sodium vapor, Na vapor. During heating, suppose this chlorine losing electron come on the surface. ये एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है जिसमें हीट करने पर यहाँ से क्लोराइड आयन चला आया सरफेस पे और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन की साइज और इस स्पेस की साइज में बहुत अंतर है। ये इलेक्ट्रॉन की साइज अगर इतनी है तो यहाँ पे कैटायन की साइज इतनी है। इसकी वजह से यहाँ पे एक लार्ज स्पेस छूट जाता है। इस लार्ज स्पेस को हम कहते हैं एफ सेंटर। अब इस सेंटर में इलेक्ट्रॉन चूंकि साइज में छोटा है और स्पेस ज़्यादा है तो हीट पाने पर ये क्या होगा, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा उस एनर्जी को लाइट के फॉर्म में इमिट करेगा।
तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर कलर आएगी। जैसे यहाँ पे क्या आता है, येलो कलर आता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हमने लिखा था, मेटल एक्सेस। यहाँ पे मेटल आयन एक्सेस हो गए, क्यों हो गए, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यहाँ एनायन के चले जाने से एक वैकेंसी क्रिएट हुई और उस वैकेंसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांजिट कर रहा है, जिसकी वजह से कलर आ रहा है। ये एफ सेंटर को हम हार्बिंजेंटर कहते हैं, मीन्स कलर सेंटर। ये है हमारा कलर सेंटर, ये एफ सेंटर है। आई बात समझे। एफ सेंटर कब बनता है, नॉन स्टिचियोमेट्रिक क्रिस्टल में मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब एनायनिक वैकेंसी के कारण होता है तब बनता है। जब हम क्रिस्टल को सोडियम क्लोराइड के सोडियम वेपर में हीट करते हैं तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके सरफेस पे चला जाता है और वो लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेंटर में जो है कि स्मॉल साइज होने की वजह से, लार्ज स्पेस होने की वजह से वहाँ पे ट्रांजिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या आता है, कलर आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लिथियम क्लोराइड ले लें और पोटेशियम क्लोराइड ले लें तो वहाँ पे कलर आएगा। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का कलर आएगा NaCl क्रिस्टल, येलो कलर, येलो। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल, क्रिस्टल वायलेट, वायोलेट एंड लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल, क्रिस्टल पिंक कलर। Okay, this way you find the color due to the creation of M center। ये जो कलर आते हैं वो किसके कारण आते हैं, F सेंटर के कारण आते हैं। और F सेंटर कैसे बनता है, F सेंटर जो बनता है वो एनायनिक वैकेंसी के कारण बनता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द excess cation। Have you noted this? Okay. Now we will see here next यहाँ पे देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन और एक्सेस कैटायन। मेटल सेकेंड इज metal excess defect due to interstitial cation। ओके, इंटरस्टिशियल कैटायन के कारण। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि एनायन और कैटायन सेम होते हैं और एक कैटायन इंटरस्टिशियल जो है पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। इन सच टाइप ऑफ नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इन सच टाइप ऑफ नॉन स्टिचियोमेट्रिक defect metric defect excess cation occupy interstitial space due to which property of the crystal, due to
which property of crystal is changed. ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होती है क्रिस्टल की, चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, and free electron trap length and electron used by cation is trapped in vicinity of cations, vicinity of this interstitial cation, vicinity of this interstitial cation, interstitial cation, okay, vicinity of interstitial cation. What happened then? This way crystal remain neutral. This way crystal remain neutral. Crystal remain neutral. Okay. For example, you can take ऐसे जो इंटरस्टिशियल में क्या होता है, हमने बताया ना कि जो क्रिस्टल है उसमें एक्सिस कैटायन जो है वैकेंट जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें आ जाता है, और उसका जो फ्री लूज इलेक्ट्रॉन होता है, अभी स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं यहाँ पे फ्री जो लूज इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। सपोज यहाँ पे है कैटायन है, ठीक है, Zn+2 O2 माइनस Zn+2 O2 माइनस O2 माइनस Zn+2 Zn+2 O2 माइनस Zn+2 and Zn+2 O2 माइनस। अब यहाँ पे जिंक आ गया स्पेस में और इलेक्ट्रॉन भी स्पेस में आ गया, ठीक है, तो इसके कारण प्रॉपर्टी में चेंज आ जाएंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड, और इसके कारण भी हमें कलर आएंगे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं एग्जाम्पल when zinc oxide is heated, then it lose electron oxygen and give yellow color। ओके, तो ये लूज
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विसिनिटी में आके रुक जाएगा, तब वहाँ पे हमें कलर येलो आने लगेगा। सेम उसी तरह से जो है कि हमने एफ सेंटर में देखा था। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड को हीट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा Zn2+ एंड हाफ O2- +2 इलेक्ट्रॉन, ओके। एक इन सच केस excess zinc ion move in interstitial site and electron move in neighboring interstitial site, interstitial site, okay, neighboring interstitial site. This way they give color to the crystal, okay. तो जो एक्स्ट्रा जिंक आयन होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में आ जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अगर बगल जितने भी इंटरस्टिशियल साइट होती है उसमें मूव करने लगते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से क्या होता है, कलर आ जाता है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ओके। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इट इज ऑब्जर्व when metal show variable valency, variable valency. This defect is observed when this defect is observed when cation metal ion is missing from the crystal lattice. Missing from the crystal lattice. For example, you can take example of ferric oxide, FeO. Example is FeO, okay, where FeO you can write FeOX, FeXO, where X is equal to 0. Where X is equal to 0.93296, 0.96। यहाँ पे F की वैल्यू जो होती है F
0.93 O, Fe 0.96 O। ओके, तो इस तरह से हमने जो है कि देखा कि जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या था कि वहाँ पे दो तरह के थे। एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से हुआ था। दूसरा जो है यहाँ पे ड्यू टू द एक्सेस कैटायन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, दोनों कलर दे रहे थे, दोनों में कलर मिल रहा था। जहाँ पे एक्सेस मेटल डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस कैटायन और मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी जहाँ पे था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कि ट्रैप हो गया था। कहाँ पे? फ्री स्पेस में, जो कि वैकेंसी क्रिएट हुई थी एनायन के कारण, और वहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके विजुअल रेडिएशन की वो कलर दे रहा था। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में हमने बोला कि येलो कलर, पोटेशियम क्लोराइड के केस में वायलेट कलर, और लिथियम क्लोराइड के केस में पिंक कलर। एक्सेस कैटायन के केस में क्या हुआ कि एक्सेस कैटायन जो एक इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया, और जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया वो नेबरिंग इंटरस्टिशियल स्पेस में चला आया, जिसके ट्रांजिशन से वहाँ पे कलर मिला हमें। ठीक है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या हुआ? ड्यूरिंग हीटिंग क्या होता है, जहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले मेटल होते हैं वहाँ पे इस तरह के हमें डिफेक्ट मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि मेटल के मिस होने की वजह से जो स्टिचियोमेट्री होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई वेरिएबल वैलेंसी के कारण, यहाँ मिसिंग हो गया क्रिस्टल्स से जो है कि मेटल कैटायन। एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे FeX हो लिया, X की वैल्यू 0.93 to 0.96 होगी। जैसे एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि होल सोल यहाँ पे जो स्टिचियोमेट्री है वो कम्प्लीटली क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने डिफेक्ट को कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारी टॉपिक होगी जो है कि इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।